डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम रीडिंग जनरल नॉलेज फॉर ग्रेड 3 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका टॉपिक है हैबिटेट्स। इन दिस चैप्टर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर: आफ्टर completing this chapter, student will be able to recognize that heat and light of the sun helps to sustain life on earth, which is the only known planet where life exists. Define the term habitat. Describe the different habitats for living things. For example, polar regions, desert, forest, aquatic. Name plants and animals that live in each of the different habitats. Briefly introduce what is an ecosystem. Identify the environmental factors, for example, temperature, light, water, that support life in a habitat. Understand the ways plants and animals have certain features adapted to their habitat. For example, camel, fish, polar bear, cactus, lotus, pine trees, etc. Identify the ways human activities affect the natural habitats. Dear teachers and students, हमारे इर्द गिर्द माहौल में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं. Some are living things and some are non-living things. Living things and non-living things are very different from each other. For example, living things need food to eat, they need to breathe, they reproduce and grow in size. They can move from one place to another. Whereas non-living things don't do any of these. So, in order to perform these things in a certain way, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिनमें सनलाइट है, एयर है, हीट है और साथ साथ पानी है, वाटर है। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स सनलाइट, एयर, वाटर और मिनरल रिसोर्सेज से जमा करके अपनी खुराक बनाता है इन चीज़ों से। और जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इन्हीं प्लांट्स को अपनी खुराक बनाते हैं। इसके साथ साथ हमें एक ऐसा एरिया चाहिए होता है, एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर हम रहें तो ये सारी चीज़ें वहाँ मैसर हों। ऐसी जगह को हैबिटेट कहा जाता है। तो चलिए आए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं, जो कि है हैबिटेट। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग on page number 3. Habitats. In the universe, or Earth is the only planet among 8 planets in the solar system where life exists. Several factors are necessary to sustain life on Earth. Heat and light are also among them. The sun, which is a huge star, is the biggest natural source of heat and light. The energy that we get from the sun is called solar energy. Plants use this energy to make their food. All other living things depend on plants for their survival. If there were no sun, there would be no light and heat. Plants would not grow. Animals and humans would not be able to get food. ज़मीन वो वाहिद सियारा है जहाँ जानदार ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि कुछ अवामिल ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि रोशनी और हरारत, जो कि हमें सूरज से मिलती है। सूरज बहुत बड़ा सितारा है। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। जो तवानाई हमें सूरज से मिलती है उसे शमसी तवानाई कहते हैं। पौधे इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक तैयार करते हैं। बाकी तमाम जानदार खुराक के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। अगर सूरज ना हो तो ना ही रोशनी हो और ना ही हरारत हो, ना पौधे फल फूल सकें और ना इंसानों और जानवरों को खुराक मिले। Habitat. Living organisms need light, heat, food and an area to where they can live for the maintenance of their lives. The place where the living organism live is called their habitat. Different species have different habitats. जानदारों को ज़िंदगी गुजारने के लिए रोशनी, हरारत, खाना और रहने की जगह चाहिए। जिस जगह जानदार ज़िंदगी गुजारते हैं इसको हैबिटेट यानी मस्कन कहते हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज़ मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं। लैंड हैबिटेट. द हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड लैंड हैबिटेट. टाइप्स ऑफ लैंड हैबिटेट इंक्लूड फॉरेस्ट, deserts, grasslands, polar regions.
वो जगह जहाँ जानदार सतह ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं ज़मीनी मस्कन कहलाता है। ज़मीनी मस्कन की इकसाम हैं जंगल, सहरा, घास के मैदान और कुतबी इलाके। फॉरेस्ट्स, these are large areas covered with cluster of trees and small plants. Wild animals like deer, owls, wolves, foxes, stags, zebras, leopards, tiger, lions, etc. live in the forests. They get their food, water and shelter in the forests. Pine trees also grow in forests. They grow close to each other to protect themselves from the heavy winds in the forest. Trees like oak, spruce, gum arabic etc. are also found in forests. Forest को उर्दू में जंगल कहते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पौधे और दरख्त कसीर तादाद में पाई जाएं जंगलात कहलाते हैं। जंगलात में मुख्तलिफ इक़साम के जानवर यानी हिरन, उल्लू, लोमड़ी, भेड़िया, ज़ीब्रा, तेंदुआ, बारहसिंगा, चीता और शेर रहते हैं। इनको खाना, पानी और रहने की जगह जंगल में ही मिलती है। जंगलात में सनोबर के दरख्त भी होते हैं। ये जंगल में एक दूसरे के करीब करीब उगते हैं ताकि तूफ़ानी बारिशों से बचा जा सके। जंगल में ओक, स्प्रूस और गम अरेबिक के दरख्त भी पाए जाते हैं। डेजर्ट्स, these are dry places consisting of sand having a little rainfall and limited water availability. Only such animals and plants who live with limited availability of water can survive here and bear extreme weather conditions of desert. Animals like camels, rats, jackrabbits and snakes etc. live in the desert. Cactus is the most common plant found in the desert. Desert को उर्दू में सहरा कहा जाता है। सहरा ज़्यादातर रेतीले होते हैं जहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं और पानी बहुत महदूद मिकदार में होता है। यहाँ सिर्फ वो जानवर और पौधे रह सकते हैं जो बहुत कम पानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें और जो सहरा का सख्त मौसम बर्दाश्त कर सकते हैं। चूहे, ऊँट, खरगोश और सांप जैसे जानवर सहरा में पाए जाते हैं। कैक्टस वो वाहिद पौधा है जो सहरा में कसरत से पाया जाता है। ग्रासलैंड्स, wide areas which are covered by grass and bushes are called grasslands. Many types of grasses are present here, but trees are less. Grasslands are the habitat of various animals such as giraffes, zebras, elephants, deer, etc. Grasslands को उर्दू में घास के मैदान कहा जाता है। घास के मैदानों में ऐसे वसी इलाके शामिल हैं जो घास और सब्ज़े से ढके हुए होते हैं। यहाँ दरख्त कम होते हैं जबकि मुख्तलिफ तरह की घास पाई जाती है। घास के मैदानों में वो जानवर रहते हैं जिनकी खुराक मुख्तलिफ किस्म की घास है, मसलन जिराफे, ज़ीब्रा, हाथी और हिरन वगैरह। पोलर रीजन्स, these are the coldest regions covered with snow and ice throughout the year. Animals like polar bears, wolves and penguins are found in polar regions. पोलर रीजन्स को उर्दू में कुतबी इलाके कहते हैं। ये ज़मीन के ऐसे इलाके हैं जो सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। इन इलाकों में सूरज कम निकलता है। इन इलाकों में पाए जाने वाले पौधे और जानवर शदीद सर्दी में भी ज़िंदा रह सकते हैं। कुतबी इलाकों में बर्फ़ानी रीछ, पेंगुइन और भेड़िए पाए जाते हैं। जैसे हमने लैंड हैबिटेट पढ़ा, अब हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे हैबिटेट की, जो कि है वाटर हैबिटेट। The water reservoirs existing on earth are called water habitats. Water is a habitat of many animals and plants. Various types of fishes, whales, dolphins, turtles, seahorses, etc. live in water. Many plants also grow in water such as algae, seaweed, sea lilies, etc. Water habitat को उर्दू में आबी मस्कन कहा जाता है। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़खायर आबी मस्कन कहलाते हैं। पानी बहुत से पौधों और जानवरों का मस्कन है। इन जानवरों में शामिल हैं मछलियों की कई इक़साम, व्हेल मछली, डॉल्फिन, दरियाई घोड़ा और कछुआ, जबकि पौधों में काई, समुद्री घास शामिल हैं। जैसे हमने ज़मीनी मस्कन की मुख्तलिफ इक़साम पढ़ी थी, अब हम इसी तरह आबी मस्कन की इक़साम पढ़ेंगे। वाटर हैबिटेट्स टाइप्स। वाटर हैबिटेट्स हैव डिफरेंट टाइप्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट, rivers, lakes, ponds and stream etc. are included in freshwater habitats. Freshwater habitats are homes for frogs,
फिशेस, लिलीज एक्सेट्रा। फ्रेश वाटर हैबिटेट को उर्दू में ताज़ा पानी कहते हैं। ताज़े पानी में नदियाँ, झीलें, दरिया वगैरह शामिल हैं। मछली, मेंढक, कवल वगैरह ताज़े पानी में पाए जाते हैं। मैरीन हैबिटेट। Seas and oceans are the biggest water habitats. A large variety of plants and animals are found in this habitat. Marine habitat को उर्दू में समंदरी मस्कन कहा जाता है। दरिया और समुंदर कुर्रा अर्ज़ का सबसे बड़ा आबी मस्कन है। पौधों और जानवरों की बड़ी तादाद समुंदर में पाई जाती है, जैसा कि वेल, शार्क, जेलीफिश, केकड़ा, सितारा मछली, समुद्री कछुआ, ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा, समुद्री घास और काई। कोस्टल हैबिटेट। Coast is the area where land and ocean meet. This is called coastal strip. In this habitat, different types of plants and animals are found. For example, mangrove, swamp, grasses, crab, etc. साहिली मुसक्कन। वो इलाका जहाँ समुद्र और ज़मीन आपस में मिलते हैं साहिली पट्टी कहलाता है। ये पट्टी भी बहुत सारे आबी जानवरों का मस्कन है। साहिली मस्कन में मुख्तलिफ जानवर और पौधे पाए जाते हैं, जैसा कि केकड़ा, दलदली घास और मिंगरो वगैरह। कीप वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।